پروسیکیوشن کے جو تھا نا بہت زبردست تھا، اس لیے اس کی ہمیں بالکل سلمان صفدر ہمارے جو لائر ہیں وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ شاہ محمود اور عمران خان، میرا تو خیال ہے 2 دن میں یہ والی جو کنوکشن ہے جس پہ ان کو سزا ہوئی بھی ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ آج تو میرے خیال میں جج بھی حیران رہ گئے تھے کہ کس قسم کے جو چارجز رانا ثناءاللہ نے کیا کیس رجسٹر کیا تھا. انہوں نے تو مجھے لگتا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کوئی شیطانی کی تھی، ایسا خراب کیس بنا کے دیا کہ وہ چل ہی نہیں سکتا. لیکن جو انہوں نے وقت گزارا جیل میں اس کا تو کسی کو ازالہ بھرنا چاہیے نا، کہ یہ کس نے جنہوں نے یہ تماشا لگایا پچھلے 10 مہینے سے اس کا بھی تو کسی کو جواب دینا ہوگا. اس لیے یہ کیس میرے خیال میں 2 دن سے زیادہ انشاءاللہ نہیں چلے گا، اور انشاءاللہ عمران خان اور ان کو رہا ہونا تو چاہیے، لیکن عمران خان اپنے لیے بالکل پر امید نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ القادر کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ختم ہوئے تو اس کے بعد دوسرا کیس القادر میں ان کو تاکہ سزا ہو جائے. میم رانا ثناءاللہ نے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان کا وجود خطرہ ہے، پھر اب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی استحکام ہے اس کے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے. کیا کہیں گے؟ کیا مطلب جو سیاسی استحکام ہے اس میں میں بڑی سیریسلی لیتی ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے، میں تو صرف کیس کی بات کر رہی ہوں جو اس نے بیڑا غرق کر دیا، شرمندہ کر دیا ہے جن کے لیے بھی اس نے کیس کیا تھا. اس سے زیادہ کیا بات کرنی ہے، اس پہ ٹائم نہیں ضائع کرتے. شکریہ. میں علیمہ بی بی کی بات میں ذرا اضافہ کر دیتا ہوں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ کیس 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 پیشیوں میں ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دوسرا دن ہے، پروسیکیوشن اپنے دلائل دے رہی ہے، اور اس کیس میں رخنہ اندازی کرنے کے لیے، اس کیس کو لمبا کرنے کے لیے، اس کو گھسیٹنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس میں مزید الجھاتے جا رہے ہیں. جو آئین اور جو قانون کی شک وہ پڑھتے ہیں اس میں وہ خود پھنس جاتے ہیں، اور جج صاحبان مجبور ہو جاتے ہیں پوچھنے پہ. مثال کے طور پہ آج جو ایک بہت مین پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ جس سائفر کے بارے میں ہم نے صرف سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ جج صاحب نے دیکھا، نہ ڈیفینس کے وکیلوں نے دیکھا، نہ سپریم کورٹ کے ججز نے دیکھا. آج جب اپنی ضرورت پیش آئی تو آج انہوں نے اس کی پروسیجر کی بکلٹ پیش کر دی. تو جج صاحبان نے اس پہ ایک بڑی کین آبزرویشن دی، اور جج صاحبان نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے سزائے موت مانگی ہے ایک سابق وزیر اعظم پاکستان اور ایک سابق وزیر خارجہ پاکستان کی ایک ایسے کیس میں جس کا جو مدعا ہے، جس کے اوپر کیس بنایا ہے، وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میکسیمم پینلٹی مانگ رہے ہیں ایک ایسی چیز میں جو ہماری آنکھوں کے آگے بھی نہیں آئی؟ اور ہم نے بھی مانگا، سپریم کورٹ کے ججز نے مانگا، آپ نے تب ہمیں نہ دیا. آج جب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو وہ قدرتی طور پہ سامنے آ گئی ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کے پاس دینے کو دلائل کوئی نہیں ہے، وہ رخنہ اندازی کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ 1 یا 2 پیشیوں کے اندر ان کا سارا کیس جو ہے اس کی کلائی کھل جائے گی، اور یہ جس کو کہتے ہیں اپنے منہ کے بل آپ گریں گے. اور انشاءاللہ اس کیس میں باعزت طریقے سے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوں انشاءاللہ. آپ نے کہا خان صاحب اپنے حوالے سے پر امید نہیں ہے، تو پھر خان صاحب نکلیں گے کیسے؟ میرے خیال میں کیونکہ انہوں نے عمران خان نے یہ بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ کوئی ڈیل کر کے نہیں نکلیں گے، وہ اپنے کیسز کا دفاع کریں گے، چاہے ٹرائل کورٹس ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ میں جانا پڑے. وہ ڈیل نہیں کریں گے، دفاع کریں گے، کیونکہ ان کیسز میں کوئی دم نہیں ہے. یہ کیس خود ہی گر گر کے مرنا شروع ہو گئے ہیں. اب اس سے زیادہ کتنا گھسیٹیں گے؟ اب تو لٹرلی ایسے لگ رہا ہے جیسے مردوں کو گھسیٹ رہے ہیں اس وقت. سائفر کا تو مردہ گھسیٹ رہے ہیں، ابھی القادر کا بھی ایک مردہ اور آ جائے گا. یہ مردے ہیں سارے، اور یہ کتنی دیر گھسیٹیں گے؟ یہاں سے ہائی کورٹ سے کیا سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے؟ اب جوڈیشری کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتے جا رہی ہیں یہ چیزیں. تو عمران خان بڑے مطلب کیا کہتے ہیں، صبر سے جیل میں یہ ٹائم گزار لیں گے، تاکہ ہماری ساری قوم یہ سیکھ لے کہ یہ بسیدہ نظام کے لیے اب ہمیں کھڑا ہو کے، انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے ظلم کے خلاف بھی آپ نے کھڑے ہونا ہے. آپ نے اس بسیدہ نظام کو اس باری
वोट आप इसलिए दे रहे हैं ताकि हम इसको आगे तब्दील करें, ठीक है। अच्छा, अभी मेरी बहन भी हैं, इधर आए। अब जो आप हम देख रहे हैं कि अभी तक हम हाई कोर्ट में इमरान खान के लिए भी जा रहे हैं, मेरी बहन और मैं अपने लिए भी जा रहे हैं, और अब हमारा जो नया सिलसिला शुरू हो रहा है वो हसन न्याजी के लिए भी जाना पड़ेगा, इबाद फारूक के लिए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी उनके साथ हाई कोर्ट में इससे जाना पड़ा है क्योंकि अब हसन और इबाद फारूक लापता हो गए हैं। अब वो जेल, जो मिलिट्री जेल में थे, वो वहाँ से लापता हो गए, और हमारे लिए ये जितनी परेशानियाँ डालते जाएं हम इस चीज़ पे मजबूत खड़े हैं। मेरी बहन इसलिए यहाँ खड़ी है क्योंकि ये आज अपने भाई के केस के लिए आई हैं और कल ये जा रही हैं अपने बेटे के लिए। तो कोई बात नहीं, हम ख़वातीन हैं, अगर हम घर से निकली हैं पाकिस्तान की सारी माएँ और बहनें घर से निकल आएंगी। ये भूल जाएं कि उनका ख्याल है कि हमारे घरों को तोड़ेंगे, हमारे बच्चों को उठाएंगे, हमारे भाइयों को उठाएंगे, हम डर जाएंगे। हम पूरे पाकिस्तान में माएँ और भी खड़ी होंगी, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरे पाकिस्तान की माएँ बहनें। अगर हम ख़वातीन निकल आई हैं, हम मर्दों को कहना चाहते हैं आप फिक्र ना करें, हम आपके आगे खड़े हैं। आपा जो हमारे सारे बच्चे सबके लिए निकलेंगे, जितने भी जो जुल्म है, जितने भी मिलिट्री कोर्ट में और बच्चे हैं और उन बाकी सब बाकी जेलों में, और जो हम देख के आए हैं, जिनकी फैमिलीज पीछे हैं, जिन गरीब मजदूरों को इन्होंने उठाया है, उनके लिए तो हमने खड़े होना ही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत देगा, अल्लाह हमारे साथ है। डरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धमकियाँ दे, कोई बात नहीं, हम अब बैठेंगे नहीं। अब चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं। जुल्म के खिलाफ खड़े होना हर एक का फ़र्ज़ है। जो जुल्म के खिलाफ नहीं खड़ा होता वो जालिम के साथ है। इसे डिसाइड हमने करना है कि हमने मजलूम के साथ खड़े होना है, जालिम के साथ। और ये इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं। रानी से बात मैं बताती हूँ कि मैं 2 दिन से यही बता रही हूँ इनको कि इन्होंने कहा कि जी मिलिट्री तनसीबात के ऊपर तोड़ फोड़ हुई। मैं तब से पूछ रही हूँ कि मिलिट्री तनसीबात की क्या हैसियत है? ईंटें, पत्थर, बेकार जहाज जिनके पीछे ये इंसानों की 25 लोगों को शहीद किया, बाकियों को जेलों में बंद करके सजाएं दे रहे। आप देखें 10 महीने तो सबको हो गए, कुछ सजाएं काट रहे। मेरा हसन न्याजी अगर गया, जितनी देर पकड़ा नहीं गया, मेरे ड्राइवर और खनसामे को उठा लिया, ड्राइवर 10 महीने जेल काट के आया, और इनका ड्राइवर काट के किस चीज़ की सज़ा काट रहे नहीं। और मेरा मुलाजिम एक था, वो बेचारा बीमार होकर हस्पताल काट के आया। इनसे ये पूछे कि ये इन्होंने किसी से माफ़ी मांगी कि हम गलती से हमने लोग उठा लिए, सबके मोबाइल ले लिए, सबके घरों से लैपटॉप्स ले गए, सबके घरों में तोड़ फोड़ की, चोरियाँ की, चीज़ें उठा के ले गए। मेरे घर में आए, मेरा फ्रिज, बर्तनों की अलमारियाँ, बिस्तर, हर चीज़ देख रहे, जो दिल करता है वहाँ से उठा लेते हैं। किसी ने ये पूछा, इनको ये पूछा अभी तक नहीं किया कि आप ये सामान किधर लेके जा रहे हैं। और जो तोड़ फोड़ लोगों के घरों की मिलिट्री के, वो जो फौजी घर, तो फौज के पास बहुत पैसे, वो ठीक हो जाएंगे। लोगों के घरों का इन्होंने तोड़ा है, उनको किसने ठीक करना है? ना इन्होंने माफ़ी मांगी किसी से, ना इन्होंने कहा कि जी हाँ जो बेचारे 25 शहीद बच्चे जवान, उनसे, उनके घर वालों से माफ़ी, बल्कि उनको कहा कि तुमने बात भी नहीं करनी अपने बेटे की, तुमने उनकी जो शहीदों की मैयतें, इन्होंने कई दिन उनको पकड़ा ही नहीं। आप ये इतना जुल्म तो शायद ही हमने की सुना होगा। हम कश्मीर की बुराई ऐसे करते हैं, कश्मीर तो कुछ भी नहीं इसके आगे। जो इन्होंने पाकिस्तान में किया, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है, वो इसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में इन्होंने इन ईंटों पत्थरों के नाम पे, जी जिन्ना का घर तो कोर कमांडर का घर, उसकी क्या हैसियत है घर की? इन्होंने, हम खुद वहाँ पे मौजूद थे, कहीं किसी ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, सड़क पे हम थे, कोई अंदर नहीं। और अगर कोई बच्चे अंदर चले भी गए तो कौन सा गुनाह हो गया? वो कौन सी मुकद्दस जगह थी? लोग तो खाना काबा के अंदर भी जाके आराम से चले जाते हैं। इन मुकद्दस जगहों की कौन सी हैसियत थी? उसके पर ये सारे सियासतदान कहते हैं जी ये लोग तनसीबात, हमारे इतनी बड़ी मुकद्दस चीज़ें थी। कौन सी चीज़ थी मुकद्दस? पाकिस्तान की चीज़ें थी, और ये इंसान थे। इंसान की कीमत सबसे ज़्यादा है दुनिया में, और इन्होंने इंसानों पे हर किस्म का जुल्म किया, ज़ख्मी भी किया। 2-3 अपाहज हैं, 2-3 बच्चे अपाहज हुए हैं।
इन्होंने किसी का ये नाम भी नहीं लेते, ना ये उनकी बात करते, ना इन्होंने माफ़ी मांगी कि हमारे से गलती हो गई थी। हम वहाँ बैठे हुए थे कोर कमांडर के घर के वहाँ, सब बाहर इतनी गोली चली पीछे से, वो इन्होंने इतनी पीछे से गोलियाँ चलाई। ये गोलियाँ हिंदुस्तान के लिए थी कि ये दुश्मनों के लिए थी कि अपने लोगों पे चलाने के लिए थी? अभी तक हमने नहीं देखा। कश्मीर इतनी फायरिंग करता है हमारे कश्मीर के ऊपर, कभी जवाबी फायरिंग भी नहीं करते उनके ऊपर, क्योंकि वो भी ये समझते ज़्यादती है उनके ऊपर करना। लेकिन अपने लोगों पे जो इन्होंने किया और हसन और इबाद पे जो इन्होंने उनको गायब किया, वे सामने लेकर आएँ, उनके जुर्म बताएं, उनको सज़ाएं बताएं, तो सामने दें। छुप के क्यों पकड़ के बंद करते हैं? क्योंकि इनके पास कोई सही चीज़ है नहीं। ये इसलिए नहीं बताते कि इनके अपने जो ये काम कर रहे हैं वही ठीक नहीं कर रहे। इन्होंने हर काम गलत किया, इन्होंने सज़ाएं गलत दी हैं, इन्होंने उनको गलत वजह से रखा हुआ है, इनको इस वजह से ये छुपते हैं। और फिर अब ये कहेंगे मेरे जैसे को कि आप बोल क्यों रहे हैं, मिलिट्री का नाम भी ना ले। मुझे बहुत लोगों ने कहा मिलिट्री का नाम ना ले। क्यों? मिलिट्री हमारी है, पाकिस्तान की। हम तो CIA का भी लोग नाम लेते हैं और मोसाद का भी लेते हैं। मिलिट्री हमारी कितनी पाकीज़ है, लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान की मिलिट्री है। जितना जुल्म पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है मिलिट्री के ज़रिए, वो पाकिस्तान में हो रहा है। और इंशाअल्लाह इस पे हम कोर्ट में भी जा रहे हैं और सारी जो भी इस पे हो सका करेंगे। और मैं अभी भी कहती हूँ कि जो ज़्यादती होगी, अगर उनके साथ जिस किस्म की भी ज़्यादती हुई, उसका भी हिसाब यकीनन लेंगे। और मैं आपको बताऊं, मैंने जितने लोग इन्होंने रखे और जो कर रहे हैं ना, इन सब की बाद में एक कहानी तैयार होगी और सबका हिसाब किताब। और ये नहीं होगा कब तक रखेंगे। और मेरा दिल है, मैं उन फौजी भाइयों को भी कहती हूँ जो इनके कहने मानते हैं कि आप भी इंसानों की तरह ट्रीट करें। आप इंसान हैं, हुक्म मानना, हर गलत हुक्म मानना किसी का भी जायज़ नहीं है। इनको चाहिए ये अपने लोगों को समझ के, बच्चों को समझ के, इन्होंने उनके एक साल पढ़ाई के ज़ाया किए, नौकरियों के ज़ाया किए, उनके घरों के हालात परेशान सब होते, तो उनके मुस्तकबिल ज़हनी तौर पे उनको किया। अब ये वो जो इबाद है, उसका बच्चा जब फौत हुआ तो इन्होंने उसको वहाँ रुकने नहीं दिया कि वो अपना गम गलत कर सकता। आज अगर वो वहाँ पे जेल में उसका तबीयत उसकी ख़राब हो रही है और वो कहती है कि जो उसने अपने आप को मारने की कोशिश करी, तो उसकी क्या हालत है। इनके पास तो कोई, इन्होंने उसको एक और जगह बंद करके उसको और टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो करना चाहता हूँ कि 25 सबसे पहले मैं आपको जितनी भी माएँ हैं जिनके बच्चे, जिनके लाल इस हालत में साल से ज़्यादा हो गया, कितना जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जो नौजवानों से, जो कीमती नौजवान है, जो इतने इंटेलेक्चुअल नौजवान है, जिनसे जीने का उनका मकसद छीन लिया, इसका अजाला कौन भरेगा? कोई नहीं करेगा। आप सोचें, वो इतने अच्छे बच्चे हैं, वो बेचारे उनको कहते थे कि तुम साइन करो कि हम बहुत अच्छी हालात में यहाँ थे और हमें यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया, और वो बच्चों ने साइन नहीं किया। हालांकि खान साहब ने मुझे कहा उन बच्चों से कहे साइन करें और घर चले जाएं, उन बच्चे नहीं माने। वो इतने अच्छे बच्चे, आप हैरान होंगे। आप एक की कहानी सुने। मेरा भाई भी रह चुका है, आपका भाई। बस ये देखिए, ये निकल के ये बहुत बड़े लोग बन के निकलेंगे। आप ये देखना इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है ये बड़े काम करेंगे। अब मेरा भाई थोड़े अरसे के लिए वालदा की बदवात होती है, अब सारी माएँ बदवा दे रही हैं, इनको लगेंगे कि ज़रूर इंशाल्लाह अर्श हो लेगा। अच्छा, ये इतने डरे हुए हैं कि 25 रमज़ान को मैडम हमारे साथ थी, असीरान के लिए, इमरान खान के लिए हम दुआ करने गए। ये इतने घबराए हुए हैं क्योंकि दुआ करते हुए हमारे खिलाफ पर्चे दिए। अब क्या 25 करोड़ आवाम को असीरान कर सकते हैं? 25 करोड़ आवाम इमरान खान के साथ खड़ी, सिर्फ असीरान नहीं। इंशाअल्लाह ये 25 करोड़ लोगों की आवाज़ बंद नहीं कर सकते। ये सारे मुकदमात ख़त्म होंगे, इमरान खान बाइज्जत बरी होगा, 25 करोड़ आवाम उसके साथ। एक सवाल ले लीजिएगा।